Hello students, I really hope you are doing well at your home. So since we are doing chapter number 2 of class 10 science, acids, bases and salts. Today we'll study about salts. Till now we have done what are salts. So what are salts? Salts, it's a compound, okay? It is a compound. Compound means it is made up of two or more things, okay? So basically two things you have to keep in mind. It's a compound, okay, that is formed from acid as well as a base. It's formed from acid as well as base. But what we have to take from what? From acid we'll be taking what? We'll be taking the negative ion, and from base we'll be taking the positive ion. So for example, like this I'm taking normal salt, sodium chloride. Okay, this is a salt, it's a compound. ओके ये कंपाउंड कहाँ से बना? ये बना एसिड से और बेस से. एसिड का मैं क्या लूंगी? नेगेटिव थिंग, जो नेगेटिव रेडिकल होता है एसिड का. बेस का मैं लूंगी पॉजिटिव रेडिकल. इन दोनों को मिला दूंगी तो क्या बन जाएगा मेरा? सॉल्ट. Okay, so we'll talk about a reaction also regarding this neutralization reaction. It is a reaction in which acids they react with bases to form salt and water. So ultimately we get salt from there. But please do not forget, whenever we get salt, salts are formed from acid and bases. Acid का कौन सा रेडिकल आएगा? नेगेटिव वाला. बेस का कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला. This you have to keep in mind. Okay, then it is very easy for you. Now moving on further with salts, you have an activity over here, that is activity 2.13. So the whole proper things I'll be going for that only. In that activity, what you have to do is, see, things that are in the activity you might have done in your class 9. But what I've observed is, students, they do lack this thing and they are not that well versed with this thing. That's why I have made a full video on this thing. In this case, we'll be going with the activity. What is there in this activity? You are given certain salts. Okay, आपको कुछ salts के name दे रखे हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है? You have to write the formulas of them. So I'll formulate the formulas over here so that you should get to know how to write a formula. So basically in this video you will get to know how to write formulas of compounds. So those who don't want to go for this topic specifically, but if they want to learn in general how to make formulas of compounds, it's very easy for them also. So this video is for them also. First thing you have to write the formula. Then उसी जो नेम है सॉल्ट का, उसको आपको ये बताना है कि वो कौन से एसिड से बना और कौन से बेस से बना. And afterwards we'll study about family of salts. So basically today's topic will study about family of salts also. Family also will be studying. Okay. So starting with the first salt is, I'll take everything step by step. Okay, see, this board is not that big that I can show all the salts that are given in your book, but I'll go with step by step. With after each step I'll keep rubbing the things. Okay, so the first salt that's given in the question is potassium sulfate. So it's potassium. It is potassium sulfate. So first thing that we have to tell over here is, we have to tell the formula. How will we tell the formula? Before this you have done radicals in class 9, so you have to go through them once. So how will we write formula? What is the first thing? Potassium. So when you have to write, whenever you have to make a formula, keep in mind हम radicals को use करते हैं. So how do we write potassium in radical form? It is K positive. Okay. How do you write sulfate? Okay, sulfate is such a negative radical. ये तो बार बार repeat होना है. ये तो it should be on your fingertips. SO4 2 negative. Okay, so this is the first step in writing any formula. First of all you have to write the radicals. ठीक है, positive radical and negative radical. Now the next step is, whatever is written on this thing, जो इस साइड पे होता है वो नीचे आ जाता है, ये वाली साइड का यहाँ नीचे आ जाता है. अब देखो यहाँ पे SO4 के ऊपर क्या लिखा है? 2. And keep in mind these charges they cancel out each other. Plus negative cancel हो गए, तो ये ऊपर क्या लिखा है? 2. तो K के बाद नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2. यहाँ पे क्या रहेगा? 1 प्लस था तो कुछ नहीं आएगा. So simply we'll write SO4. So this is the formula of potassium sulfate. So one thing we're done with the salt. एक चीज हो गई salt. अब हमें ये बताना है, जो ये salt है, हमने बोला अभी salts they are made from acids and bases. एसिड की हम नेगेटिव थिंग लेते हैं, बेस की हम पॉजिटिव रेडिकल लेते हैं. तो इसमें कौन कौन सा एसिड और बेस यूज हुआ है? एंड कीप इन माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट एसिड्स, सिर्फ 3-4 एसिड्स एंड दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. द एसिड्स आर, या तो एसिड हो सकता है H2SO4, या हो सकता है HCl,
या हो सकता है HNO3 एंड इन सर्टेन कंडीशंस वी कैन टेक दिस एसिड, दिस इज आल्सो टेकन। कई बार आपका ये भी ले लेते हैं कार्बोनिक एसिड। कुछ एसिड्स है, these 5 acids we have to keep in mind, that's in your syllabus. It can be sulfuric acid, HCl acid, hydrochloric acid, HNO3, nitric acid, CH3COOH, that's acetic acid, then H2CO3, that is carbonic acid. So moving on further, हमने बात करी थी ये सॉल्ट है, सॉल्ट में से सॉल्ट दो चीजों का बनता है, ठीक है। सॉल्ट की जो पॉजिटिव चीज है ये कहां से आती है, बेस से, और नेगेटिव वाली चीज कहां से आती है, एसिड से। नेक्स्ट स्टेप हमें ये बताना है। अब सबसे पहले एसिड देखेंगे। एसिड, टू टेल एसिड इज वेरी सिंपल, इन पांचों में से होगा कोई एसिड। अब हम मैच करते हैं जो इसका जो नेगेटिव रेडिकल हमने यूज किया, विच इज द नेगेटिव रेडिकल दैट वी हैव यूज्ड। ये वाला नेगेटिव रेडिकल है ना, 2 नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव था। अब मैच करो किसके साथ ये मैच हो रहा है। SO4 कहां दिख रहा है आपको, यहाँ पे। इट मीन्स द सॉल्ट, इट हैज यूज्ड द एसिड H2SO4, ये वाला एसिड यूज करके ये सॉल्ट बना, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज, अब इस सॉल्ट का हमने ये बताना है कि बेस कौन सा है। इन अ वेरी फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू बेसिस जो होते हैं दे आर हाइड्रोक्साइड, जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। तो ओवर हियर विच मेटल यू सी, ये सॉल्ट है, ये बेस और एसिड से मिलके बना है। हमने एसिड बता दिया, ये वाला पोर्शन एसिड से आया, तो ये वाला पोर्शन बेस से आया होगा, ठीक है। सो इट मींस के दे हैव टेकन पोटेशियम, सो विच हाइड्रोक्साइड कैन बी देयर। बेसिस क्या होते हैं, मोस्टली हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर देयर, बट वी टेक ओवर हियर इन योर सिलेबस मोस्टली हाइड्रोक्साइड्स दे हैव टेकन। सो मेटल हमें पता लग गया और हाइड्रोक्साइड तो बेसिस होते हैं, क्लियर। सो ये वाला स्टेप भी डन हो गया। अब नेक्स्ट थिंग इज, इन दिस केस वी हैव टू टेल अबाउट द फैमिली ऑफ सॉल्ट, ठीक है। फैमिली के बारे में इफ यू टॉक ओवर हियर देन देयर विल बी सम कंफ्यूजन, बट आई विल गिव यू अ ब्रीफ रिव्यू। फैमिली का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल वी टेक जनरली इन आवर केस, okay, if I belong to some family or someone, for example Sharma family we'll talk about, Sharma family के बारे में बात करते हैं, okay। Sharma family, when you see the members of that family, हर के नेम के पीछे शर्मा शर्मा शर्मा, you get that thing, okay, it means वो सभी एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, वही घर में रहते हैं, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। सिमिलर इज द केस ओवर हियर। अब सॉल्ट्स में क्या होता है, अगर कोई दो सॉल्ट्स है, फॉर एग्जांपल ये कौन सा सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन इज इन दिस एक्टिविटी, सेकंड क्वेश्चन इज सोडियम सल्फेट, हम ये भी करेंगे। अब इसके बाद हम यही करेंगे। I told you on this board I cannot write all the 8-9 salts that are given, we'll go step by step. So this is the second question that we'll be learning. Now in this question, अब देखो पोटेशियम सल्फेट पीछे वाला सेम है ना, सोडियम सल्फेट, इसका मतलब ये दोनों सॉल्ट कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, सल्फेट फैमिली। अगर इनका फ्रंट पोर्शन भी सेम होता है ना, देन ऑल्सो दे वुड हैव बिलोंग टू सेम फैमिली, ओके। फॉर एग्जाम्पल इस पोटेशियम सल्फेट, अगर मैं यहाँ पे भी क्या लिखती हूँ, पोटेशियम क्लोराइड, सपोज करो एक ये वाला सॉल्ट है पोटेशियम क्लोराइड, दिस इज आल्सो वन ऑफ द सॉल्ट। तो पोटेशियम पोटेशियम हो गया, मतलब वो सेम फैमिली में है, ठीक है। सो इन दिस टॉपिक वी टॉक अबाउट फैमिली ऑल्सो। तो याद रखना फैमिली का क्या मतलब होता है। फैमिली मीन्स चाहे आप किसी भी सॉल्ट के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल दिस सॉल्ट वी टॉकिंग, या दो सॉल्ट्स के बारे में बात करें, पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट, इनमें से देखो सॉल्ट हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का बना होगा, या तो पॉजिटिव रेडिकल सेम होगा दोनों का, या फिर नेगेटिव रेडिकल सेम होगा, ठीक है। ओवर हियर पोटेशियम सल्फेट सोडियम सल्फेट सेम, सो वी कैन कम टू अ कंक्लूजन। फैमिली का मतलब होता है सॉल्ट्स, इन केस ऑफ सॉल्ट्स फैमिली का मतलब है या तो आपका पॉजिटिव रेडिकल या आपका नेगेटिव रेडिकल मैच करना चाहिए, तो इट मींस यू बिलोंग टू द सेम फैमिली। सो दीज टू सॉल्ट्स दे बिलोंग टू सल्फेट फैमिली, पोटेशियम सल्फेट सोडियम सल्फेट, ओके। Now moving on further, अगर मैं सॉल्ट लेती हूँ पोटेशियम क्लोराइड और ये पोटेशियम सल्फेट, इनके आगे वाले नेम सेम है, इनका पॉजिटिव रेडिकल सेम है, ठीक है। तो क्या कहती मैं, कौन सी फैमिली है ये, पोटेशियम फैमिली। जो चीज जो वर्ड सेम है ना बेटा, मतलब उस फैमिली से बिलोंग करता है, ओके। नाउ लेट्स लीव दिस थिंग। सो हमने क्या करना है, व्हाट इज एक्चुअली देयर इन दिस एक्टिविटी, हमें सॉल्ट्स दिए गए हैं, वी आर गिवन 8-9 सॉल्ट्स, ठीक है। हर सॉल्ट का हमने पहले फॉर्मूला बताना है। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू टेल फ्रॉम विच एसिड दैट सॉल्ट इज मेड, फ्रॉम विच बेस दैट सॉल्ट इज मेड, और वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। सो वी आर डन विद वन सॉल्ट, दिस इज सल्फेट फैमिली। अब ऐसा नहीं फैमिली बेटा, याद रखना फैमिली डज नॉट मीन ओवर हियर, ऐसे तो सो मेनी सॉल्ट्स आर देयर, हमने सिर्फ फैमिली की बात कर रहे हैं। जो एक्टिविटी में हमारे पास सॉल्ट्स गिवन है तो हम वो वाली फैमिली बात करेंगे सिर्फ। हमारे पास 8-9 सॉल्ट्स गिवन है, उसमें से हम देखेंगे कौन सी फैमिली में से है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन, सेकंड इज सोडियम सल्फेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग अबाउट द फॉर्मूला, sodium, okay, sodium, how do we write sodium? First step is formula Na positive, this is the way to write sodium, ठीक है।
सल्फेट है, आई टोल्ड यू वेरी वेल, सल्फेट का तो शुड बी ऑन योर टिप्स नाउ, SO4 2 negative. These are the positive and negative radicals now. You'll cross multiply. Second step I told you. पहले तो ये क्रॉस ये कर दो, उसके बाद फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई. सॉरी आई यूज इट रॉन्ग टर्म ओवर हियर. अब 2 नीचे आ जाएगा, इट बिकम्स Na2SO4, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे रह जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला. इट्स वेरी इजी टू राइट फॉर्मूला. सबसे पहले रेडिकल्स लिखो, देन आफ्टरवर्ड्स यू कैंसल दोस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस. जो इस साइड पे ऊपर है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, जो इस साइड पे ऊपर है वो यहाँ नीचे आ जाएगा. दीज ओनली 2-3 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो. You get the formula, but in this case the radicals should be correct, otherwise you can mess up with the wrong formula. Then now we will tell from which acid and which base it is formed. Again look over here, salt है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से बना. तो देखो SO4 कौन सा एसिड मैच कर रहा है आउट ऑफ दीज? H2SO4. इट मींस एसिड इज H2SO4. नॉट टॉकिंग अबाउट द बेस. आई टोल्ड यू बेसिस आर हाइड्रोक्साइड्स होते हैं. कौन सा मेटल हाइड्रोक्साइड है? विच इज द सेकंड पार्ट? Na. So this is the base. Now family I told you they both belong to sulfate family. ठीक है? Now moving on with the next one. So third we'll be talking about. So third question is, first is potassium sulfate, sodium sulfate, then we have calcium sulfate. Okay. Next inactivity question is. So we have this next question. Calcium sulfate. Okay, calcium sulfate. Again radicals, the first step you're doing the formula. Calcium, how do you write calcium? Radical Ca2 positive. This is the radical form of this one. Sulfate I told you it's coming again and again, it should be on your tips. So the first step is cancel out this plus and negative. Now you notice one thing, 2 both are same, so they will also cancel out each other. तो कुछ नहीं रहता. So what will come below? Nothing. CaSO4. This is the formula. So what's the next step in activity? हमें ये बताना है कौन सा एसिड है. So how can we tell the acid from SO4? So acid is H2SO4. अब बेस कौन सा होगा? I told you basics. They have taken hydroxides. ठीक है? अब ये तो हमें पहले से पता है कि बेसिस हाइड्रोक्साइड्स होते ही हैं. तो हमें बस फ्रंट पोर्शन बताना है बेस का. फ्रंट पोर्शन हमें यहाँ से मिल जाता है, क्योंकि सॉल्ट बना तो फ्रंट पोर्शन से, इसका यूज हुआ ही है कैल्शियम. सो डोंट राइट CaOH, because you know this thing, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस. Okay, keep this thing in mind. अब ये it's not like magic thing. Again look over here. कैल्शियम का फॉर्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि कैल्शियम को हम डिनोट करते हैं ऐसे. दिस इज हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड का हमेशा होता है ऐसे. तो फर्स्ट स्टेप इज कैंसल द साइन. नेक्स्ट इज ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है. सो Ca. अब देखो ये 2 O के लिए भी है, H के लिए भी है, इसलिए हम OH होल ट्वाइस लिखते हैं. Beta, these things you have already done in your class 9, but there might be some students who might have doubt. So to clarify those doubts, I have made this whole video on this activity. Okay, so please make the full use of this thing. Now we are done with the third thing. Now moving on with the fourth salt. Fourth salt is magnesium sulfate. The fourth question is in activity is magnesium sulfate. Magnesium sulfate. So first thing is radicals, magnesium. How do you denote magnesium? Mg2 positive. Sulfate SO4 2 negative. Okay, again you see it's very easy. Plus minus here 2 you can cancel them. ठीक है? Then what's the next step? यहाँ पे जो ऊपर है वो यहाँ नीचे आ जाएगा. Nothing is there, so it will comes out to be MgSO4. Now again next thing, from which acid this salt is made and from which base this salt is made, because base salts are formed from acids and bases. So what do you see over here? Sulfate. Which acid? Again H2SO4. So it is H2SO4. ये वाले acid से बनता है ये. ठीक है? Now talking about the base. Which base? Bases are hydroxides. But कौन सा hydroxide है ये? Which metal is shown over here? Bases are metal hydroxide. तो कौन सा metal यहाँ पे? Magnesium. So again this is not the correct formula of magnesium. The correct formula is this. इसका भी ऐसे ही होता है फॉर्मूला, बिकॉज Mg is 2 positive, OH is negative. तो कैंसिल आउट ये हो जाएंगे तो ये नीचे आ जाता है, तो इट बिकम्स MgOH whole twice. Okay, so now moving on with the next question. Again family, see these all you have done 4 salts till now. पोटेशियम सल्फेट कर लिया, सोडियम सल्फेट कर लिया आपने, कैल्शियम सल्फेट कर लिया, मैग्नीशियम सल्फेट कर लिया. आपने क्या देखा, क्या कॉमन है? सब में लास्ट वाला वर्ड कॉमन है. नेगेटिव रेडिकल इज कॉमन, सो दे ऑल बिलोंग टू सल्फेट फैमिली, क्योंकि सल्फेट वर्ड कॉमन है. नाउ नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट.
नेक्स्ट इज अगेन कॉपर सल्फेट. Copper sulfate. Okay. So how do you write copper? See beta, copper is having valency 2 also, valency 1 also, but in your syllabus they have taken valency 2. So don't get confused कि यहाँ पे तो mention है ही नहीं, तो वो वहाँ mention करते हैं. They will write like this, copper 2 sulfate. It's not written in your book, but हमेशा mention होता है. 2 का मतलब है उन्होंने copper ये वाला लिया है, Cu2 positive. So again I'll tell you, जब कॉपर को लिखते हैं रेडिकल फॉर्म में, हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड कुप्रस, दिस इज कॉल्ड कुप्रिक. ओके, इनके नेम्स है कॉपर को जब रेडिकल फॉर्म में आते हैं. तुम्हें कैसे पता लगेगा हमने कौन सा वाला यूज करना है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है कॉपर 2 सल्फेट, लिखा ही होगा वहां पे. अगर ऐसे नहीं लिखा होगा दे विल राइट कुप्रिक सल्फेट. ओके, बट दे विल मेक इट क्लियर फॉर यू. इन बुक इट्स नॉट रिटन, बट कीप इन माइंड इट विल कम फॉर श्योर इन बोर्ड्स. अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है तो ये मेंशन हमेशा करते हैं कौन सा वाला कॉपर लोगे आप. सो इट्स 2 सल्फेट. नाउ SO4 2 नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गए. सो नथिंग कम्स ओवर हियर.